Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we see what are the type of the cloud computing and then we see the benefits of cloud computing and then we move to 5G uh, technology, network technology, what is that? And in last video, we see about infrastructure as a service and platform as a service and software as a service, that is SaaS, PaaS and IaaS. Okay, so let's move. So सबसे पहले तो क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग आपको मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया. व्हाट आर द क्लाउड कंप्यूटिंग? वॉट एवर द सर्विसेज वी यूज फ्रॉम द इंटरनेट एंड we pay for particular services. Sometimes it may be free, but we use that services from internet, and that is nothing but the cloud computing. Whatever we use on network, that is the cloud computing. Okay. So there are three basic type of deployment of cloud computing, that are the public, private, and hybrid. What are they? Let's see. In public cloud, all the services and supporting infrastructure are merged offsite over the internet and shared across the multiple users. Public cloud are more efficient and inexpensive than the private and hybrid cloud solution. पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि जो भी सर्विसेज है, जो भी हमने जैसे IaaS बोल लो, सास बोल लो, जो भी है, वो सर्विसेज क्रिएट करी जाती है एक पर्टिकुलर लोक ऑफ साइट लोकेशन पे इंटरनेट के. ओके, एंड दैट सर्विस इज अवेलेबल टू all multiple users who want to use that service. Okay, so that is the nothing but clouds, public cloud. Okay, so उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अजूर, अमेजॉन AWS. अब ये जो अमेजॉन AWS और माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, ये जनरली जब डेवलपमेंट में हम करते हैं तब API के टाइम में हम यूज़ करते हैं इस सर्विसेज को, राइट. तो अभी फिलहाल उतना आपको समझेगा नहीं, लेकिन ठीक है, इतना समझ लो कि अमेजॉन AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑल दिस आर द cloud services. Okay, but it is public cloud. Okay, private cloud, as the name suggests, private cloud, it service through the internet or a private network to selected users rather than general public. All the data is protected behind the firewall, and private cloud solutions are preferred to enhance security and privacy by the users. अब क्या होता है कि कुछ कुछ जो सर्विसेज रहती है, जैसे कुछ कुछ सॉल्यूशंस रहते हैं, वो क्या होते हैं कि वो प्राइवेट रहते हैं, मतलब कि उसे हम एक्सेस इजीली नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर उसके प्रोटेक्शन की वजह से, प्रोटेक्शन फायरवॉल. सो इसको एक्सेस करने के लिए हमें प्रॉपर परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, एंड देन वी कैन यूज दैट सर्विसेज इजीली. ओके, सो at the privacy and security point of view, it is uh, more secure than public cloud. Okay, so then this is private cloud. Okay, third one is the hybrid cloud. Hybrid cloud environment combine both public and private cloud element, and the cloud in the hybrid environment communicate over an encrypted connections and allow for the portability of data and applications. Hybrid cloud allows greater flexibility as compared to that of public and private cloud solution. अभी क्या होता है कि हमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ सर्विसेज अभी अभी हमें कभी कभी क्या कभी कभी हमें प्राइवेट क्लाउड की जरूरत पड़ती है, कभी कभी पब्लिक क्लाउड की. सो sometimes it have some more difficulty to access both these services. So there is a concept of hybrid cloud, that actually it is type which use to access public as well as private elements of um, public and private clouds elements. Okay, so this is more flexible and give more flexibility to for our work, whatever we do. So
दिस इज हाइब्रिड क्लाउड। ओके, कुछ नहीं, हाइब्रिड क्लाउड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का। सो ठीक है, बस यही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज, और नेक्स्ट पार्ट इज बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए, इस क्लाउड कंप्यूटिंग इतना ट्रेंड में क्यों है, आज भी ट्रेंड में चल रहा है, बिकॉज ऑफ दे आर दैट आर कॉस्ट सेविंग। हाउ इट इज क्लाउड सेविंग, कॉस्ट सेविंग? Cloud computing solutions are inexpensive than actual overall infrastructure setup for the IT service। अभी क्या होता है कि अगर हमें कोई भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सो दैट टाइम वी वांट मोर रिसोर्सेस। जैसे हमें बहुत सारे रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, या फिर प्रोटेक्शन प्राइवेसी के लिए हमें कुछ एंटीवायरसेस को यूज़ करना होता है। सो अभी हमें अगर सिर्फ कुछ ड्यूरेशन के लिए हमें उसे परचेस करना है, सो दैट टाइम हमें उसे फुल वर्जन उसका परचेस करने की ज़रूरत नहीं। हम अपने हिसाब से उसे परचेस कर सकते हैं with the help of this cloud computing। Okay, so that is the beneficial for us। so we save our cost। अभी कैसा है कि हम सिंपली हमारे पर्सनल लैपटॉप में तो नॉर्मल अपना एंटीवायरस यूज़ करते हैं, बट जब भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, तब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि उनको अगर डेटा प्राइवेसी के लिए अगर कुछ चाहिए, तो उसके लिए एन्क्रिप्शन, प्रॉपर एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, जो इनक्रिप्ट कर सके, डिक्रिप्ट कर सके, राइट। सो उसके लिए हमें उस सर्विसेज को पे करना होता है, राइट। सो अगर मुझे उसे कुछ ड्यूरेशन के लिए ही अगर रखना है, सो मुझे उसे फुल्ली पे करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं जितना ड्यूरेशन यूज़ करना चाहता हूँ, उतने ड्यूरेशन के लिए मैं उसे बाय करूँगा, और मैं उसे उस ड्यूरेशन तक यूज़ कर पाऊँगा। तो इसमें मेरा क्या हो रहा है कि कॉस्ट सेविंग हो रहा है। सो दैट इज़ द नथिंग बट benefit, cost saving। Okay, reliable, cloud computing solutions are more reliable than the in-house IT infrastructure, right। अभी कैसा होता है कि अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, राइट, एक मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें रिलायबल किस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरे जो भी सपोर्टिंग फाइल्स है या फिर जो भी मेरा डेटा है, मैं उसे स्टोर करूँगा। सो जहाँ भी अगर मैं जैसे स्टोर कर रहा हूँ किसी लोकेशन पे, जैसे कि एक एग्जांपल बोल सकते हैं गिटहब। एक गिटहब करके वेबसाइट है जिसपे हम अपना जो भी सॉफ्टवेयर का जो भी डेटा है, अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, तो उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ वहाँ पे, राइट। सो अगर मैं मेरे पास वो अगर डेटा, अगर मेरा सपोज मान लो कि अगर मेरा लैपटॉप का डेटा कुछ करप्ट हो जाए, या फिर किसी वायरसेस आ जाए, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सो मेरा वो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए ये फैसिलिटी मैं यूज़ करता हूँ, राइट। सो अगर मेरे पास डेटा ना भी हो, तो मैं उस वहाँ से उसको फेच कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द रिलायबिलिटी। एंड मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग है, मैं उसे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। बिकॉज अगर मेरा कोई पर्सनल लैपटॉप है, अगर मैं उसमें डेटा स्टोर है, और मैं कहीं बाहर गया हूँ, and that time I want to work I want to do some work with that data। so मुझे उस डेटा को अगर मैं उसे क्लाउड पे स्टोर करता हूँ, तो मुझे उसे सिंपली उसे डाउनलोड करके उस पर वर्क करके उसे अपलोड कर देना है। सो माई डेटा इज स्टोर इन टू द पर्टिकुलर लोकेशन इन द इंटरनेट, एंड I use that data whenever I want। Okay, so that is the mobility। Okay, so this is the cloud computing। Okay, so our next part is the 5G, that is the fifth generation cellular network technology, right? 5G 5G is the next generation of wireless communication। It is expected to provide internet connection that are multiple times faster than 4G LTE। that is long term evolution। LTE का मतलब होता है long term evolution, right? 5G टेक्नोलॉजी में बी ए वेराइटी ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड्स। अब क्या होता है कि जो भी हम यूज़ करते हैं, वो किस में यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रम्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि हर
इसकी एक बैंड विड्थ होती है, राइट? सो हम वी कैन से दैट स्पेक्ट्रम, दैट इज स्पेक्ट्रम including millimeter wave radio spectrum which can carry very large amount of data at short distance. The drawback of the higher frequency is that they are more easily obstructed by the walls of buildings, trees, and other foliages, and even charges changes in the weather. Okay. अब क्या होता है कि दो टाइप की, अब ये जो रेडियो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि हम आपने देखा होगा कि वायरलेस रेडियो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है, जैसे कि हमारा वायरलेस पकड़ लो, राइट? सो उसमें क्या होता है कि हम लार्ज अमाउंट डेटा तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अगर मुझे और उसके बियॉन्ड जाना है, उसके एक पर्टिकुलर रेंज के आगे जाना है, तो उसके लिए मुझे, अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर डेटा भेजना है, सो उस टाइम में ये रेडियो स्पेक्ट्रम मेरे लिए कोई इतना मायने नहीं रखेगी। वाई? बिकॉज वो जब तक पहुंचेगी तब तक मेरा बहुत सारा डेटा लॉस हो जाएगा। वाई? क्योंकि इसके जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे कि वॉल बोल सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, चेंजेस इन वेदर्स बोल सकते हैं, सो इससे हमारा डेटा हर्ट होता है। बिकॉज क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा वायरलेस नेटवर्क थ्रू जाता है, वो किससे जाता है? वेव से तो जाता है ना, राइट? वेव से तो मिलीमीटर वेव से ही जाता है, राइट? सो वो जो वेव्स है, उस वेव्स को कंट्रोल करने के लिए हमें 5G नेटवर्क यूज करना हो। सो द 5G networks will able to transmit very large amount of data but only a few block at a time, right? अब क्या होता है कि अगर 5G टेक्नोलॉजी में अगर मुझे कोई डेटा भेजना है, सो वी हैव टू पुट सम पर्टिकुलर ब्लॉक्स। अभी यहाँ पे क्या होता था कि रेडियो स्पेक्ट्रम में डेटा जो भेजते थे हम पैकेट्स में भेजते थे, राइट? सो वो हम आगे पढ़ेंगे, नेटवर्किंग में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में, नेटवर्किंग में इसके बारे में बहुत डिटेल्स में देखें। बट 5G में क्या होता है कि जो भी डेटा जाता है वो ब्लॉक में जाता है, राइट? सो 5G network are digital cellular network and each provide area covered by providing it divide into smaller geographical area called cells. अब क्या होता है कि जो भी 5G नेटवर्क में क्या होता है कि सैटेलाइट्स होते हैं, एंटीना टावर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं। एंड एक एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया को तो नेट कवर करते ही है, बट दूसरे टावर से एक टावर को कनेक्ट किया जाता है, राइट? सो अगर मुझे एक टावर से दूसरे ए टावर से बी टावर में अगर डेटा भेजना है, तो क्या करेगा कि सपोज मान लो अगर एक लोकेशन है, एक एरिया है ए और बी नाम का, राइट? और वहाँ पे मुझे ए के एक लोकेशन से मुझे बी के दूसरे लोकेशन पे कोई डेटा भेजना है। सो वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी हम डेटा भेजते हैं वो टावर टू टावर भेजते हैं, राइट? जो भी नेटवर्क एंटीना टावर होता है उसका, राइट? तो वो क्या करता है कि एक टावर से दूसरे टावर में डेटा कम्युनिकेट करता है। एंड whenever and it send that data to where I put the location, okay? जो भी लोकेशन पे, अगर मैंने जिस लोकेशन में मुझे वो डेटा भेजना है, उस लोकेशन में वो डेटा भेज देता है, राइट? सो दैट इज द 5G टेक्नोलॉजी। फीचर्स क्या है? अब इसमें क्या है कि डेटा जो ट्रांसमिशन का जो एरिया है वो स्मॉल हो जाता है, मतलब मल्टीपल टावर्स होते हैं, जोग्राफिकल एरिया छोटा कवर करता है। सो एरिया छोटा कवर करने से उसका जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाता है, राइट? सो हम इसमें लार्ज डेटा भी भेज सकते हैं, राइट? सो इसके फीचर्स क्या है? एप्लीकेशन देख लेते हैं इसके, जैसे कि ऑनलाइन 5G गेम। आजकल हम ऑनलाइन 5G गेम्स खेलते हैं, राइट? ऑटोमेटेड व्हीकल्स, 5G की टेक्नोलॉजी से वजह से हम अपने व्हीकल्स को भी ऑपरेट कर पाएंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स, राइट? दिस these are the facilities under the facilities under this application with the help of this 5G technology. Okay, so here is one diagram
we show what are the features. 5G टेक्नोलॉजी कवर अल्ट्रा एच डी वीडियोज़, रिड्यूस वेबसाइट लोड टाइम. जो भी अभी हमें कोई अगर वेबसाइट लोड करनी है तो दैट टाइम वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम. सो उसका भी सॉल्यूशन 5G में प्रेजेंट है. बिकॉज ऑफ अभी लोड नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो ठीक से काम नहीं करता, राइट. सो दैट वाई it takes some time. Okay, so reduce website load time, reduced app multiple times faster than 4G, right. ये तो की फीचर है उसका कि बहुत ज़्यादा डेटा बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा ये. एंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, राइट. एंड IoT बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड टेक्नोलॉजी. ओके, सो here we complete our fourth chapter. In next chapter we see about JavaScript. Okay, so student, today we stop here. In next video we start the JavaScript and see about how can we bind that JavaScript to our uh, HTML pages. So stay safe. Goodbye.